Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Sadiq Amri, your chemistry teacher. Dear students, today we will discuss the chapter number 2, structure of the atoms. And in this chapter, we will discuss the Bohr's atomic model or Bohr's atomic theory. This model was proposed on the basis of the different defects found in the Rutherford's atomic model. When the different defects were found in the Rutherford's atomic model, then Bohr's proposed and other models, that is called Bohr's atomic model or Bohr's atomic theory, which was remove the defects in the Rutherford atomic model. This is the picture of the Neil Bohr, and he was a Danish physicist who joined the Rutherfords in 1912 for his postdoctoral research. In 1930, Bohr presented his atomic model based on the quantum theory of mechanics. He won the Nobel Prize in the 1922 for the physics as he was working on the structure of the atom. This was the brief discussion or brief introduction of the Neil Bohr. Now we are moving toward the introduction. As I have already disclosed or I have already unbuckled and detailed to you that on the basis of the different defects found in the Rutherford's atomic model, the next model was proposed by the Neil Bohr's atomic model in 1930. This model was completely based upon the quantum theory of the, in other words you can say, नील बोहर जो था उसने अपने मॉडल की जो बेस बनाई वो क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लॉन्क्स मैकेनिक्स थी and he found the different concepts or the different criterias and base make the different bases of his model. For example, according to the Bohr's model, revolving electrons in an atom does not absorb the energy or does not emit the energy continuously. ये सबसे अहम बात थी नील बोहर्स की। उसने कहा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, ना तो वो एनर्जी को खारिजी करता है ना ही वो एनर्जी को जज्ब करता है। अब दूसरी बात ये थी कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड भी होती है और फिक्स्ड भी होती है। इसी तरह हर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड भी होती है, वो क्वांटाइज्ड भी होती है। अभी हम इसकी वर्डिंग पे जा रहे हैं। द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स ओनली in the orbit of the fixed energy called energy level by. Now we will see the picture. These are the K, L and M. These are the orbits, and first orbit K is equal to N is equal to 1, it means it is the first orbit. N is equal to 2 mean it is the L, that is the second orbit, and third orbit N is equal to 3, that is called M orbit. First of all we will see let an electron is at in the orbit of the L and move toward the orbit of M. यानी एक इलेक्ट्रॉन जो था वो L में पड़ा हुआ था वो M में गया, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में गया, तो इट्स मीन कि वो एनर्जी को गेन करेगा या एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जो था वो M ऑर्बिट में पड़ा हुआ था और वो मूव करके आया है K ऑर्बिट में, शिफ्ट हुआ है, यानी कि M से K में आया। अब वो एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, किस शेप में करेगा, डेल्टा ई की शेप में। अब हम इसकी डिटेल को देखते हैं। देखें इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। सबसे पहली बात ये थी कि उसने हाइड्रोजन, चूंकि सबसे छोटा एटम है और सब छोटे न्यूक्लियस के साथ है, सबसे पहले उसने हाइड्रोजन को लिया और उसने कहा कि उसका जो रेडियस है वो आर होगा। अभी हम इसकी वर्डिंग के ऊपर जा रहे हैं। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ द टाइनी आर स्मॉल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर revolving in one of the circular orbits of the radius r around the nucleus. सबसे पहली बात ये थी कि उसने हाइड्रोजन का एटम लिया and said that electrons are revolving around the nucleus of an within the hydrogen atom. In the radius of the hydrogen atom is r. And the next postulate he proposed that every orbit has a fixed energy and that fixed energy is quantized. Mean each orbit has fixed energy that is quantized. When electron
remain in a particular orbit, it does not release the energy, it does not absorb the energy। कहना क्या चाह रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट के अंदर रहता है, ना तो वो एनर्जी को खारिजी करता है, ना ही वो एनर्जी को जज्ब करता है। अभी हम इसकी वर्डिंग पे जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट डज नॉट रेडिएट or it does not absorb the energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to an other orbit। यानी कह रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है, ना तो वो एनर्जी को खारिजी करेगा, ना ही वो एनर्जी को जज्ब भी करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या ऑब्जॉर्व कब करता है? जब वो एक ऑर्बिट से जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है। अब उसकी दो कंडीशंस हैं, वो दो कंडीशन हम नेक्स्ट ऑर्बिट में पढ़ते हैं। कैसे? पिछले में भी हमने देखा, ये देखें, ये एल जो था वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट था। जब एल से जंप करके इलेक्ट्रॉन एम में गया तो इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की है। It's mean कि when an electron jumps from lower energy orbit to the higher energy orbit, it absorbs the energy. And contrarily or in the opposite way, when the electron jumps from the higher energy orbit to the lower energy orbit, mean from M to K, like this, from M to K, it will release the energy in the form of delta E। Let's see the last point। When an electron jumps from lower energy orbit to the higher energy orbit, it absorbs the energy, and when it jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit, it radiates the energy। कहने का मतलब यही है कि जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो क्या करेगा कि एटम जो है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। अभी देखें ये क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। अब क्या डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई है डिफरेंस इन एनर्जी आर चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी क्या है कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया तो कितनी गेन की है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो कितनी लूज की है, ये उसका डिफरेंस है। E2 क्या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट 2 एंड E1 क्या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट 1। अब क्या है वहां पर, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, E2 इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, डेल्टा ई इज द चेंज इन एनर्जी, एच क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और उसके बाद म्यू क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है, ये प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट और चेंज इन एनर्जी। लास्ट पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व्स ओनली इन द ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अगली बात ये की है कि वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, वेयर एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द एटम, एच क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। अभी बताया कि उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। एन क्या है, एन क्वांटम नंबर है, एन इज अ क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग 1 2 3 टू सो ऑन। अब पाई जो है ये कांस्टेंट है। अभी देखें, ये चीजें हमने जो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना चाहे, दो बातें हैं। एक तो है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। अच्छा, इधर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तभी मूव करेगा जब वो पोजेस करेगा एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने लेसन पढ़ा उसकी समरी ये है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसमें डिफरेंट डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए बोहर्स जो था उसने बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था वो प्रपोज किया, और उसके मुताबिक जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रहता है ना तो एनर्जी को लूज करता है ना ही एनर्जी को गेन करता है। सिमिलरली जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, और जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा।
अब वो किस शेप में लूज करता है, वो डेल्टा ई शेप उसकी होती है। डेल्टा ई मीन कि उसमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें E2 माइनस E1 होता है। E2 एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट एंड E1 इज एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। उससे अगली बात ये की गई है कि एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा किसी इलेक्ट्रॉन का तो वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव करेगा, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी जो है वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।